Good morning, students. So this one is the second modules of our syllabus. That one is wave optics. So in this unit, we will discuss about generally wave optics consists two parts, two chapters. One is the interference of light, and second one is diffraction of light. So here we will discuss interference of light in detail. We also give some ideas that shows the introduction of wave optics. So the contents in which we through which we will discuss about these points. So that one is what is wave. So first we will discuss about the wave. Second, we will discuss about the what is optics, and third one is meaning of wave optics. Fourth one is interference, types of interference, condition for sustained interference. So here we will discuss what are the necessary conditions that are required to produce a sustained interference, and division of interference. Here we will discuss the categories of interference. What are the ways, what are the criterias through which we can interfere two light waves or two sources. And in last point, we will discuss about the applications of interference of light. Interference of light. Clear? So first we will discuss what is wave. So as we know that wave, generally wave क्या है? Wave is the form of energy, or we can say that the wave is the way through which we can transfer the energy. And in other words, we can also describe a wave can be described as a disturbance that travels through a medium from one location to another location. So whenever a particle is enter into a medium, so first it will disturb the medium of particle, and this disturbance of medium of particle is known as wave. So whenever a particle or a body is going to be move in a straight direction or in a straight path, so whenever it enters into the medium, so it disperses the particle of medium. So when we trace the path of this particular body, so the disturbance of medium of particle is known as wave. So later we will discuss about the diagram. Through the diagram we will discuss what is wave. So waves are everywhere, like sound waves, water waves, tidal waves, mechanical waves, electromagnetic waves, etc. So generally through the diagram we can see that waves transfer energy. So for example, when a stone is thrown in a pond, when we put a stone in a pond, so generally we see that the height of waters are going to be disturbed, or so that this disturbance generally creates water waves. So यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि जो डिस्टरबेंस जनरली आ रहा है, ये बता रहा है आपको कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वाटर का जो हाइट है, सरफेस का, वाटर सरफेस का जो हाइट है, दैट वेरीज. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कुछ ना कुछ जनरेट हो रहा है, और वो जनरेट जो है वो जनरली क्या है, वो वेव है. और वेव क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. सो this one is the another example of wave. So सुनामी में जनरली हम देखे थे कि बहुत सारा जो वाटर था का जो हाइट था वो बहुत एक
स्पीड के साथ जो है किसी पर्टिकुलर टारगेट को हिट किया, तो जनरली वहां पर भी वही हुआ कि जो वाटर वेव्स थे जनरली दे ट्रांसफर देयर एनर्जी, तो वहां पर जो एनर्जी था वो किसी पर्टिकुलर बॉडी को हिट किया, तो हम कह सकते हैं कि जो वेव्स होते हैं दैट ट्रांसफर द एनर्जी. So what are the properties of wave? So when we see the diagram, so it will be find that this one is the propagation of light and this one is the disturbance of medium of particle. तो यहाँ पर जो लाइट का प्रोपगेशन है जनरली वो इस डायरेक्शन में है, स्ट्रेट डायरेक्शन में है, और ये जो मीडियम का जो डिस्टरबेंस है ये आप देख पा रहे हैं, ये दाया बाया जो शिफ्टिंग आप देख पा रहे हैं ये डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम ऑफ पार्टिकल है. जनरली ये वेव आप जो है ये वेव है जनरली. तो इसमें आप देखेंगे कि जो डिस्टरबेंस है जनरली ये मीन पोजीशन के आप देख पा रहे हैं अप एंड डाउन पोजीशन पर है. जनरली ये ट्रांसवर्स वेव का एक डायग्राम है. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो एक डिफरेंट टाइम इंटरवल पर आप देख रहे हैं वेव में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. सो ये जो पॉइंट है, सो दिस पॉइंट इज नोन एज क्रस्ट. So if we find out the maximum distance from the mean position up and down direction, up and down position from the mean position, so this hike is known as the top. So the crest is the top part of the wave, clear, and at bottom part it is known as trough, clear. So trough is the bottom part of the wave and crest is the top part of the wave. So if we are going to find out the amplitude of wave, so what is amplitude of wave? So amplitude is the maximum distance from mean position. So this one is the maximum distance. देख सकते हैं यहाँ मैक्सिमम नहीं है, यहाँ भी मैक्सिमम नहीं है, लेकिन ये मैक्सिमम डिस्टेंस है. सो जो टॉप है एक्चुअल में द एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू द क्रिस्ट ऑफ और फ्रॉम एक्सिस टू ट्रफ. जनरली ये जो क्रस्ट जो आप देख रहे हैं और जो ट्रफ जनरली जो आप देख रहे हैं ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो आप देख पा रहे हैं ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है. So how can we define the wavelength? So wavelength generally है wave का length. Generally जो wave एक cycle को complete करने में जो length को travel करेगा, the distance traveled by a wave to complete one cycle or one cycle period, we can also say that. So this one is the wavelength. So in other words, we can also say that the distance between any two consecutive crust or two consecutive trough is also known as wavelength. Because अगर आप यहाँ से चलते हैं इस पॉइंट से और अगर आप इसी पॉइंट पर फिर पहुंच जाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये भी एक साइकिल कंप्लीट हो गया. यहाँ आप देख पा रहे हैं ये आप यहाँ से और चले और यहाँ पर आप ये एलिमिनेटिंग पॉइंट है, ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. तो ये कंप्लीट साइकिल जो है दिस शोज द वेवलेंथ ऑफ वेव. सो वेवलेंथ ऑफ वेव इज डिनोटेड बाय लैम्डा. सो द वेवलेंथ is the distance after which the wave pattern repeats itself. That one is the distance between two identical points on the wave. So this may be crest point or this may be trough point. So how can we differentiate frequency and time period? So the frequency of wave is the number of cycles per second, और हम कह सकते हैं कि एक सेकंड में वेव कितना साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है. सो ये भी फ्रीक्वेंसी है उसका, और इसको हम इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, और पर सेकंड भी हम इसको कह सकते हैं.
और टाइम पीरियड जनरली क्या है, जो टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड होता है और ये द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल में जो टाइम लिया जा रहा है वेव के द्वारा, सो दिस वन इज द टाइम पीरियड एंड इट इज मेजर्ड इन सेकेंड। So frequency and time period is also related, and the relation is that it is frequency is equal to 1 upon time period. So if the time period will be greater, then frequency will be minimum. Clear? अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो वहां पर फ्रीक्वेंसी उसका कम होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वहां पर टाइम पीरियड, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वहां पर इसका मतलब है टाइम पीरियड कम। So what is optics? So optics is the branch of physics which involves the behavior and properties of light. यहाँ पर हम light की जो behavior है, उसके अंदर जो properties हैं light का, उसको हम पढ़ेंगे, including its interaction with matter. So how it is reacted with matter whenever it is made incident on matter, when light is interacted with matter, so what will happen? And the construction of instruments that use or detect it. So optics is divided into two main branches. One is known as geometrical optics or ray optics. Describes the propagation of light in terms of rays, which travels in straight lines. जनरली हम देख पा रहे हैं कि लाइट अगर स्ट्रेट फॉर्म में जा रहा है तो वो रे है, और अगर वो जो अभी आप देख रहे थे, अगर वो अपना जो लाइट का प्रोपगेशन है उसके अगर आप जो डिस्टर्बेंस को पढ़ते हैं, जनरली वो वेव होता है. So in which light is considered to propagate as a wave. So here there are two types of optics, ray optics and wave optics. So what are the differences between ray optics and wave optics? So you can see through the diagram. So whenever light is incident on a particular boundary, so this one is the interface between two mediums. So when light is incident on as per the making an angle incident along with the normal, then it is reflected in that direction, or it is incident in from this direction, that it is reflected at that direction. So this one is the reflected ray, and some part of it is partially refracted inside the medium as per the laws of refraction. So this one is the propagation of rays, light rays. And when we represent a wave, so this one is the representation of wave. So you can see easily the differences between the ray and wave. So generally wave optics क्या है, आप देख सकते हैं कि wave optics में हम interference of light, diffraction of light and polarization of light को पढ़ेंगे. Clear? जो कि आप रे ऑप्टिक्स में जो संभव नहीं है. सो जनरली वेव ऑप्टिक्स में हम यहाँ पर लाइट का इंटरेक्शन भी कह सकते हैं कि लाइट का इंटरेक्शन मटेरियल के साथ होगा. लाइट पर्टिकुलर किसी मटेरियल पर जब गिरता है तो कैसे रिएक्ट करता है, क्या चेंजेस आते हैं लाइट की प्रॉपर्टी में, ये सब चीजें हम वेव ऑप्टिक्स में देखेंगे. सो पहला हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. So interference generally क्या है, when two or more than two light waves having same frequency or wavelength move in straight line in same medium, then the intensity of light will be different at different points of the medium. तो लाइट वेव जो दो या दो से अधिक लाइट वेव जब मूव करते हैं, उनका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, स्ट्रेट डायरेक्शन में, मीडियम सेम होना चाहिए, एक ही मीडियम में. तो अलग अलग पॉइंट्स पर दे shows different intensity of light. Somewhere they shows minimum intensity and somewhere they shows maximum intensity. So this phenomena is known as interference. So generally ये जो interference है, that one is the based upon the principle of superposition.
Superposition means when two light waves are interfere to each other or superimposed to each other, then their resultant displacement will be sum of individual displacements. तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहाँ कहाँ होता है. जनरली व्हेन white light is made incident on color film or soapy bubble, so some beautiful colors are seen or colors are produced. So this one is the example of interference. Beautiful colors are also seen when white light is made incident on एक film. फिल्म पर भी अगर लाइट को आप डालते हैं जनरली, तो वहां पर भी हमें कुछ इंटरफेरेंस की वजह से, अगर वाइट लाइट को आप डाल रहे हैं तो वहां पर भी कुछ कलर्स आपको दिखेंगे. तो इंटरफेरेंस को आप कई जगह देख सकते हैं, कई सारे आपके एप्लीकेशंस में हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं. और डेली लाइफ में जो रेनबो का जो फॉर्मेशन है, दैट वन इज द एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आल्सो. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस. जनरली इंटरफेरेंस को अगर हम बात करें तो ये टू टाइप्स में है. पहला है कंस्ट्रक्टिव. तो अभी जो हम पहले देखे कि लाइट का जो इंटेंसिटी है एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विल बी डिफरेंट. दैट वन, समवेयर इट विल बी मैक्सिमम, समवेयर इट विल बी मिनिमम. सो जो मैक्सिमम है उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे. तो उसमें खास बात क्या है कि व्हेन टू लाइट वेव्स आर इन सेम फेज, जब दो लाइट वेव सेम फेज में इंटरफियर करते हैं तो जनरली क्या होगा, जब दोनों एक सेम फेज में इंटरफियरिंग करेंगे, एक साथ किसी पॉइंट पर पहुंचेंगे, सो वहां पर क्या होगा, लाइट की जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी मैक्सिमम. क्लियर. तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा आपका दोनों पॉइंट्स पर, वो सम होगा इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का. सपोज ये y1 है, ये y2 है सेकेंड वेव का डिस्प्लेसमेंट. तो रिजल्टेंट पर जब ये पहुंचेगा तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर दोनों सेम फेज में हैं तो वहां पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उनका ऐड हो जाएगा. तो वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट से जो रिजल्टेंट होगा वो आपको ज्यादा दिखाई देगा. सो दिस वन इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो वेव है, जनरली वेव्स, देखिए लिसनर का एक एग्जांपल यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि एक स्पीकर और दूसरा स्पीकर, अगर दोनों का से जो वेव, जनरली साउंड वेव्स जो अगर पहुंच रहे हैं किसी लिसनर के पास, तो दोनों अगर सेम फेज में ट्रेवल करते हुए लिसनर पर पहुंचेंगे तो उसका जो स्पीड होगा, जो उसका जो उसका जो इंटेंसिटी होगा वो बहुत हाई होगा. तो ये एक एग्जांपल है इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का. वैसे आप यहाँ देख सकते हैं जनरली वेव के फॉर्म में. ये देखिए, ये मैं बता रहा था आपको कि ये वेवलेंथ है, क्रस्ट और ट्रफ के बीच का लेंथ भी. तो ये देखिए दो वेव आप देख पा रहे हैं. तो ये दोनों वेव का जो प्रोपगेशन है टाइम इंटरवल के साथ सेम है. मींस एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट दे आर मीटिंग इन सेम फेज टू ईच अदर. जब ऐसी वेव को आप इंटरफियर कराते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी ग्रेटर. तो ये जो रिजल्टेंट होगा इनका, ये बढ़ जाएगा यहाँ. तो ये रिजल्टेंट है. ये देखिए रिजल्टेंट आपका इन दोनों का सम को दिखा रहा है. अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि आपको जब अपोजिट फेज में टू लाइट वेव्स इंटरफियर करेंगे तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा लाइट का वो कम हो जाएगा. क्लियर. सो द मैक्सिमम ऑफ वन वेव कैन कोइंसाइड विद द मिनिमम. ये भी हम कह सकते हैं एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ से, मींस इनके बीच में जो आप देख पा रहे हैं जो एंगल का जो डिफरेंस है, जो फेज है वो 180 डिग्री है. तो वहां पर इस तरीके से अगर ये अपोजिट फेज में इंटरफियर कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो यहाँ पर लाइट की जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी मिनिमम. सो दिस इंटरफेरेंस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव, और डार्क इंटरफेरेंस भी कह सकते हैं हम इसको, मिनिमा भी कह सकते हैं. क्लियर. सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस. एक अच्छे इंटरफेरेंस के लिए हमें क्या चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो वेव्स हैं जनरली वो किसी सोर्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं दैट शुड बी कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक. अगर वो मोनोक्रोमेटिक होगा तो वहां पर जो वेवलेंथ जनरेट होंगे वो आपका सेम फ्रीक्वेंसी के होंगे. सो द सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट
कोहेरेंट होने से क्या होगा, उनका जो फेज होगा वो कांस्टेंट होगा। क्लियर। तो कोहेरेंट होने से क्या होगा, उनका जो इंटेंसिटी होगा वो आपको अच्छा मिलेगा, आपका इंटेंसिटी में एम्प्लीफिकेशन होगा। और अगर वो इनकोहेरेंट हैं तो जनरली वहां पर क्या होगा, उनका इंटेंसिटी कम होगा। तो इंटरफेरेंस के लिए सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, sources should be monochromatic, the sources must be narrow। जनरली यहाँ पर हम सोर्सेस के लिए, इंटरफेरेंस के लिए हम क्या करते हैं, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस से इंटरफेरेंस नहीं करा सकते, बिकॉज देयर इज ए लेक ऑफ एमिशन। एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, एटम्स जब एनर्जी को रेडिएट करता है जनरली, वहां पर कुछ टाइमिंग लेग के कारण, कुछ टाइम इंटरवल डिफरेंस के कारण क्या हो पाता है कि लाइट का जो सुपर पोजिशन होता है वो इतना परफेक्ट नहीं हो पाता। इसलिए हम दो इंडिपेंडेंट सोर्स को प्रेफर ना करते हुए एक सोर्स से दो सोर्स को डिराइव करते हैं। जनरली हम आगे पढ़ेंगे। तो जो सोर्सेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्लिट्स आप लगा रहे हैं, इट मस्ट बी नैरो। उससे क्या होगा कि लाइट आपका एक हाई बीम के फॉर्म में लाइट किसी स्क्रीन आपके किसी पार्ट पर गिरेगा तो वहां पर लाइट की थोड़ा सा इंटेंसिटी को आप अच्छा पाएंगे। सो लाइट वेव्स मस्ट बी गो इन सेम मीडियम एंड सेम डायरेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि लाइट जो दो लाइट वेव्स हैं, दो या दो से ज्यादा, वो सेम मीडियम में होंगे तो इंटरफेरेंस आपका होगा। ऐसा नहीं कि एक को आप एयर मीडियम में चला रहे हैं, एक को आप वाटर में चला रहे हैं, या एक का डायरेक्शन नॉर्थ में एक का साउथ में, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कोहेरेंट लाइट मोनोक्रोमेटिक होगा, लेकिन मोनोक्रोमेटिक लाइट कोहेरेंट हो ये आवश्यक नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि ये इनकोहेरेंट है बट स्टिल मोनोक्रोमेटिक। तो लाइट कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक में ये डिफरेंस भी है। तो अब अगर हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ इंटरफेरेंस की, कैटेगरीज ऑफ इंटरफेरेंस की, तो इंटरफेरेंस को आप दो तरीके से करा सकते हैं। पहला डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से। इसमें हम जनरली क्या करते हैं कि जो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में कि जो आपका वेव फ्रंट होता है, जो सोर्स होता है, जनरली इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हुआ है। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म भी इस कैटेगरी में आता है, लॉयड्स मिरर भी इस कैटेगरी में आते हैं। और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में क्या होता है, इसमें हम जो इनकमिंग लाइट वेव होता है उसके एम्पलीट्यूड को, या ये कहें कि हम उसके 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 कुछ पार्ट्स, उसको हम सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और दीज सब पार्ट्स आर अगेन री यूनिट, और उनको हम फिर से री यूनिट कर देते हैं बाय कुछ लाइट की हम फिनोमिनाज यहाँ पर लगा देते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं, रिफ्रैक्शन लगा सकते हैं। और जब हम इनको री यूनिट कर देते हैं तो वहां पर भी इंटरफेरेंस होने लगता है। तो ये कैटेगरी में आता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के जो एप्लीकेशंस हैं, जो एग्जांपल्स हैं, उसमें आता है आपका सिलेबस में न्यूटन्स रिंग मेथड, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, मैकजेंडर इंटरफेरोमीटर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में आते हैं। और डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का मैंने जैसा एग्जांपल बताया आपके सिलेबस में यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जो हम इसको पढ़ लिए हैं पिछले सिलेबस में। क्लियर। तो अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि जनरली डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में न्यूटन्स रिंग एप्लीकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके।